Good afternoon, friends. Welcome to Roaring Cycle Spotlight. I hope you all had a good week and enjoyed yourself. And today is World Tourism Day, so happy World Tourism Day to all of you. And we are on the special day, we are going to have a person who has literally fought against all odds and come out in the world and really had a he is such an inspiration that listening to his story, I'm sure most of us will be inspired and look forward to riding no matter what happens to us. So we are just waiting for him to join in, and I will add him on as soon as he joins in. Have you guys gone for any breakfast ride or traveled anywhere recently? Good afternoon, Lalit. Hi, Ranjit. Give me a minute. I'm just waiting for our guest to join so that I can add him here. So we have our guest and I'm adding him on. Just wait for him to join. Hey, hi Nilanjan, how are you? I'm good, ma'am. What about you? I'm good. Can you just hold your camera a little up? I can't see your face, like it's cut from the forehead. Oh, okay, ma'am. Okay. Yeah, but the light is not coming through. Your face isn't. Can Light. you turn towards the light? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's good, ma'am. No, little more. Light. Can you face the light? Turn the other way around. I think the light will come then. Oh, okay, ma'am. Just wait. Yeah, the other way. Yeah, that's better. And yes, cool. So welcome to our show, Roaring Cycle Thank you, ma'am. Spotlight, Millet. Very happy to have you here. I was just telling the audience that how inspiring you are. Uh, looking at the trouble that you might have gone through with various challenges, and then still you stuck on to your life. You still stuck on to riding, and you're living your passion of photography and Yes, ma'am. riding to so many places and all that. So, without wasting much time, Nitin, tell us something about yourself other than being a bike. हाँ, मैम। मेरा नाम नीलांजन है। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन You need कल्याणपुर है। to और I can hear you. यस, मैम। हेलो। Yeah, go ahead. या, मैम। मेरा नाम नीलांजन है। मैं त्रिपुरा इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन कल्याणपुर है। मेरा स्कूल मैं जब स्टार्ट किया था तो कल्याणपुर में ही स्टार्ट किया। 11-12 मैंने कल्याणपुर में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स में कंप्लीट किया मेरे इधर के ही कॉलेज से, खोवाई से। उसके बाद इस साल 2019 में मैंने एडमिशन लिया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में। फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट को एमएससी कर रहा हूँ फॉरेस्ट्री में। और अभी मैं Can you just hold on? I can barely hear you. 1 second, yeah. Sorry. One minute. मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ फॉरेस्ट्री में। और बाइकिंग भी करता हूँ। मैंने जब राइड स्टार्ट किया, मतलब जब मैं बाइक चलाता था तब मैं क्लास 9 या 10 से मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया। मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, मतलब बाइक चलाने में।
और मैंने जब फर्स्ट राइड अपना आउट ऑफ द स्टेट किया तो वो 2018 में था, NERM मैंने पहली बार किया, IIT-MC के साथ मेरा फर्स्ट राइड था सिक्किम में। I don't know. I'll just get my earphone. I'm not able to hear you. Maybe there's some problem with my audio side. Just hold on 1 minute, yeah. ओके ओके ओके। तब तक पंखा देखना। I'll put on my earphones because I'm not able to hear you. I don't know what's wrong with my phone. Yeah. Go ahead. Sorry. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। पहले से स्टार्ट करूँ मैम इंट्रो? हाँ जी। ज़रूर। मेरा नाम नीलांजन है। मैं त्रिपुरा इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन कल्याणपुर में था। अभी भी कल्याणपुर में ही रहता हूँ। तो अभी मैंने जब स्कूलिंग स्टार्ट किया, मेरा स्कूलिंग कल्याणपुर में ही हुआ। मेरा 10th 12th कल्याणपुर में ही कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने हमारे यहाँ की ख्वाहिश से मैंने जूलॉजी ऑनर्स में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फॉरेस्ट्री में अभी मास्टर्स कर रहा हूँ फॉरेस्ट्री में। तो जब मैंने बाइकिंग स्टार्ट किया मैम, तब मेरा मतलब प्रॉपरली मैं जब बाइक चलाता था, तब मैं जब 8th क्लास में था, तब मेरे मामा ने मेरे को बहुत हेल्प किया बाइक सीखने में। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया बाइक सीखने में। लेकिन तब मैं रोड पे नहीं निकलता था, लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। घर वाले भी मतलब बहुत घबराए हुए थे क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है पहले 4 साल की उम्र में। उसके बाद घर वालों का थोड़ा तो बहुत वो रहता है, निकलने नहीं दे रहे Right. थे। जब जब मैं कॉलेज में उठा, मैं तब मेरा पहला बाइक मैंने ख़रीदा, वो R15 था यामाहा का। तभी वो मैम राइड वाइड को लेके इतना इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद 2017 के लास्ट में मैंने थंडरबर्ड 350 खरीदा। Wow. उसके बाद 2018 में मैंने पहली बार मेरा आउट ऑफ द स्टेट राइड किया। NERM था सिक्किम में, IIT-MC के साथ। दो हज़ार So, हाँ 2000। आपने हाँ मैम बोला आपका बताओ। 4 साल में आपका कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ हाँ था आपके साथ? हाँ मैम, जब मैं 4 साल का था, तब मैं वो तब मेरे घर के मतलब मेरा जो मामा का घर है, उसके साथ ऑपोजिट साइड में ही मैम एक BSNL का ऑफिस है। अच्छा। तो बचपन में जब खेलता था, मतलब खेलते खेलते उस ऑफिस में एक दिन अचानक से घुस गया। उन लोगों का मतलब गेट खुला वाला ही रहता है, उसके अंदर एक ग्राउंड था, हम उधर ही खेलते थे। तो घुस गया उधर। एक मैम ट्रांसफॉर्मर था 11,000 वोल्ट का। ओ। तो मेरे को बचपन से एक क्यूरियोसिटी था, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर साउंड क्यों करता है, मतलब क्यों करता है वो ट्रांसफर ऐसा। एक दिन उस क्यूरियोसिटी में जब मैं स्कूल से आया, तब मैं उधर गया, जाके देखा। देखते देखते ही मतलब जब सीढ़ी उधर गेट जो खुला हुआ था, जब सीढ़ी से उधर मतलब उठा, उधर जाके ही मैंने वो ट्रांसफार्मर का वो पकड़ लिया, जो मतलब फ्यूज बॉक्स होता है जो, वो पकड़ लिया। पहले राइट हैंड से पकड़ा। उसके बाद मतलब जितना मेरे को याद था, मैं पूरा तो सिनेरियो याद नहीं था उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद का सीन जो लोग मैं घर वालों से जो सुना वो बताऊंगा। राइट हैंड से पकड़ा, उसके बाद जब लेफ्ट हैंड से मतलब उस हाथ को मतलब ऐसे खींचने चला गया, तभी पूरा मतलब ब्लैकआउट हो चुका था मैं। ओ। उसके बाद घर वालों ने बोला था, बात जो लोग देख रहे थे वो लोगों ने बोला कि एक पक्षी आके वो फ्यूज बॉक्स के साथ टकराई। उसके बाद जब फ्यूज उड़ गया, तभी मैं मतलब ऐसे नीचे गिर गया था। ओ। ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक रियली पेनफुल। मतलब हाँ मैम, वो उस टाइम ट्रांसफार्मर पे इलेवन आपका। थाउजेंड वोल्ट का था। ओ गॉड, लाइक बट देन या गॉड्स ग्रेस आप या बच गए एंड यस मैम। you are living your life now. So is that when you lost your hand? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरा त्रिपुरा में जो हॉस्पिटल है GV, उधर लेके जाने के बाद उन लोगों ने मतलब ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो इतना मेरा हमारा उधर का ट्रीटमेंट उतना हाईली प्रोफाइल नहीं था।
हम्म। जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद होगा। मतलब एक्सीडेंट जब हुआ उसके 2 दिन बाद मेरे को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया। उधर मेरे अंकल का हॉस्पिटल है, उधर शिफ्ट कर दिया गया। उधर जाके मेरा मैम 8 महीना तक ट्रीटमेंट चला और हम्म। 7 दिन में 7 ऑपरेशन हुआ मेरा। ओ मतलब माय रेगुलरली गॉड। हफ्ते में 7 दिन में 7 ऑपरेशन हुआ। लास्ट ऑपरेशन में मेरा दोनों हाथ मतलब काट के फेंक दिया। उसके बाद उन लोगों ने सोचा था कि मतलब दूसरे दिन जब आएंगे ऑपरेशन के बाद, जब हाथ चला गया, उन लोग मतलब डॉक्टर लोग जो बता रहे थे कि शायद उसका कुछ हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा या उसका ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा या हम्म। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन भगवान के मतलब आशीर्वाद से मेरा और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मेरा कुछ नहीं हुआ। सब नॉर्मल था, सिर्फ दोनों हाथ ही चले गए। सो यू हैव बीन, आप इस चैलेंज को लेके अभी तक आप जी रहे, तो मुश्किलें तो आई होगी, लेकिन अ, आपने इसको कैसे फाइट किया? मुश्किलें जब आई होगी मैम, मतलब जब मैं कोलकाता से वापस आया 8 महीने के बाद, उधर से मैं आर्टिफिशियल लिम्स लाया था मेरे लिए। हम्म। दोनों हाथ का वेट मैम 7 kg तक था। ओके। आके जब इधर एडमिशन लिया स्कूल में, जब क्लास 2 या 3 में था, तब भी वो आर्टिफिशियल लिम्स लगा के घूमता था। एक दिन स्कूल में गया मैम, जाके जब लिखने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसका सिर्फ मैम 3 फिंगर वर्क करता है, बाकी कोई मतलब फिंगर वर्क नहीं करता है। और पीछे आपको बेल्ट से उसको बांध के रखना पड़ता है। जब मैं लिखने ओके। की कोशिश कर रहा था मैम, मैं देख रहा था मेरे दूसरे जो बच्चे हैं मेरे साथ, वो लोग बहुत फास्ट लिख रहे हैं एग्जाम में। मेरा तो मतलब मैं एक प्रश्न का उत्तर क्या दे रहा हूँ, वो लोग पूरा खाता लिख चुके थे। सेंटेंस। ओके। उसके दूसरे दिन मैं जब घर पे आया, आके मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मेरे को ये आर्टिफिशियल लिम्स नहीं चाहिए। हम्म। आप आप लोग मेरे को सपोर्ट करो थोड़ा, मैं इससे ही मतलब दोनों हाथ जैसा है ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद उस डेट से अभी तक मैं इन दोनों हाथ से ही लिख रहा हूँ, और किसी भी एग्जाम में मैंने नॉर्मल बच्चों से 5 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं लिया। मतलब जितना टाइम शेड्यूल में रहता है उसी टाइम में कंप्लीट करता हूँ अभी तक, टिल नाउ मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम अभी तक नहीं लिया। ग्रेट, ग्रेट, ऑसम, रियली थैंक यू मैम। सल्यूट टू यू फॉर दैट। तो थैंक यू। आप, मुझे बताया गया कि आप अपने बाइक भी आप ऐसे ही चलाते हो, मतलब आपने आपके हाँ बाइक को कुछ मॉडिफाई भी नहीं किया है नहीं है आपके मैं सहूलियत हाँ के लिए, या कुछ भी नहीं किया है? नहीं मैम, मेरा बाइक जैसा स्टॉक में रहता है, मैंने जब एनईआरएम राइड किया था थंडरबर्ड, जैसे स्टॉक रहता है मैंने वैसे ही किया। अच्छा। मेरे मजे के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन किया, लाइट को इधर लगा दिया, इंडिकेटर को उधर लगा दिया, वो अलग बात है। लेकिन हैंडल में, हाँ। ब्रेकिंग में, क्लच में, फ्रंट ब्रेक, लेफ्ट मतलब रेयर ब्रेक में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया। जैसा का बाइक स्टॉक था वैसे ही मैंने राइड किया। वाह। तो आपने कहाँ कहाँ राइड किया हुआ है? मैंने बेसिकली मैम 2018 में एक ही राइड किया, सिक्किम में राइड किया था। हम्म। उसके बाद मैम आके कॉलेज की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से थोड़ा फंस चुका हूँ। कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, उसके लिए मैंने अभी तक राइड नहीं। त्रिपुरा में राइड किया, वो त्रिपुरा में जैसे जगह है, जैसे निर्मल हो हम्म। गया मैम, उनकुटी हो गया, और हाँ। हमारा त्रिपुरा का जो अमेजन है छबीमुरा, उधर किया था। हाँ। हाँ। अच्छा। बस त्रिपुरा में थोड़ा बहुत मैं घूम चुका हूँ, और बाहर से मैम आउट ऑफ द स्टेट एक ही राइड हुआ है अभी तक। इस बार प्लान था, लेकिन कोरोना की वजह से मैम अभी कुछ दोस्त लोग भी मना कर रहे हैं कि अभी नहीं निकलेंगे, थोड़े दिन बाद निकलेंगे। हाँ, अभी कोरोना चल रहा है, तो थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद निकलोगे तो थोड़ा और ज्यादा सेफ हो जाएगा, हाँ हाँ, वही सिचुएशन थोड़ा ज्यादा हैंडल हो जाएगा। वही मैम। विच इज ग्रेट। तो अभी आप आपने कहा कि आप एमएससी कर रहे हो फॉरेस्ट्री में, हाँ मैम। तो फॉरेस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट है आपको? फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है मैंने मैम, जब मैं जूलॉजी में था तब भी हमारा जो एचओडी था, उन लोगों उन सर ने बोला कि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर चुके हो जूलॉजी में, अभी थोड़ा बहुत देख लो, अदर कुछ अगर कोर्स तुमको इंटरेस्टेड लगता है तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने सर को पूछा था, सर क्या करूँ, बोटानी भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चांस नहीं मिलेगा, बोटानी है, फॉरेस्ट्री है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में, माइक्रो है, मोलिकुलर बायोलॉजी है। तो सर ने बोला कि फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट ले लो, अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट तुमको, क्योंकि त्रिपुरा में जैसा फॉरेस्ट का अभी चल रहा है सिनारियो, अगर उधर करोगे तो कुछ लाइफ में भी इन फ्यूचर अगर इसको लेके तुमको प्रोफेशनली करना है तो वो भी कर सकते हो। तो फॉरेस्ट्री में जाके देखो, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो जाके देखा कि सर की बात मतलब एमएससी एग्जाम दिया में था, जूलॉजी में था। उसके बाद मैं हम्म। फॉरेस्ट्री में गया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी। वाह। मतलब आप
आपने जूलॉजी भी किया, मतलब आपको एनिमल्स से प्यार है कि फिर जूलॉजी आप वाइल्ड लाइफ ये करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए किया? मेरा मैम फोटोग्राफी में एक इंटरेस्ट था पहले से ही। हाँ। फोटोग्राफी मैं करता था, तो वाइल्ड लाइफ में मैम थोड़ा बहुत मेरे को बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर मैं इन फ्यूचर कुछ भी करूँगा एमएससी के बाद, तो मेरा मैम प्लान है वाइल्ड लाइफ में ही करूँगा। अगर कोई कोर्स करूँगा तो वाइल्ड लाइफ में ही करूँगा, ऐसा एक प्लान है मैम ग्रेट। अभी तक दिमाग में। हाँ। वाह। आपने फोटोग्राफी भी सीखा है कि फिर आप आपके शौक से आपने प्रैक्टिस कर करके आपने स्किल्स मैम आपका शौक से। आप? नहीं मैम, इधर भी मतलब मैं कहीं पर भी जाके सीखा नहीं हूँ। मैंने जब फर्स्ट एक डीएसएलआर लिया था, उसके पहले एक छोटा कैमरा था कैनन का। तो जब मैंने डीएसएलआर लिया, कैनन से भी कुछ बहुत छोटे मोटे फोटोग्राफी करता रहता था। जब डीएसएलआर लिया इतना बहुत आइडिया नहीं था। उसके बाद निकॉन का 2 एक वर्कशॉप हुआ अगरतला में, वो अटेंड किया। उधर जाके थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना सीखा कि कैसे मतलब फोकस करते हैं, अपर्चर मिलाते हैं। थोड़ा बहुत जाना लाइट कैसे डालते हैं, आईएसओ कैसे बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत सीख के मैंने ट्राई किया। अभी थोड़ा बहुत मोबाइल से भी करता हूँ, मतलब ऐसे ही मैम कर रहा हूँ, इधर भी जाके सीखा नहीं है। तो आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हो कि अभी खाली आपका शौक है नहीं मैम, इसके लिए करते हो? मेरा शौक है, इसके लिए ही करता हूँ। तो अब प्रोफेशनली नहीं शुरू किया आपने? नहीं नहीं, प्रोफेशनली मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया प्रोफेशनली फोटोग्राफी को लेकर। ग्रेट। अभी आप मतलब आप बाइकिंग के इतने शौकीन हो, आपने छोटे में ही सीखना शुरू कर दिया। आपको कहाँ कहाँ घूमने की इच्छा है? मेरा मैम इस बार प्लान था कि हम मतलब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ मेरा प्लान था कि हम दोनों निकलेंगे या नेपाल या सिक्किम विकिम ऐसा साइड करके आएंगे, ऐसा एक शौक था मतलब इस साल। लेकिन कोरोना की वजह से शायद ये प्लान नहीं होगा, और अगर होता भी है तो मैम दिसंबर को निकलेंगे, ऐसा एक प्लान है, दिसंबर को निकलेंगे। अगर सिक्किम और नेपाल का पास मिल गया तो सिक्किम और नेपाल करके आएंगे। ग्रेट। आपको मतलब स्टार्टिंग में जब सीखने के टाइम पे तो कुछ दिक्कत आई होगी, तो आपने हाँ। कैसे मैनेज किया वो? जब मैं मैम स्टार्टिंग में सीख रहा था तब मामा ने बहुत हेल्प किया। अगर मतलब जब मैं दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा मतलब पकड़ के चला रहा था, तब अगर किसी खड्डे में गिर गया बाइक चलाते हुए, तभी थोड़ा हम्म। हाथ में वाइब्रेशन हुआ तो मामा ने पीछे से पकड़ लिया कि गिरा मत दे, ठीक तरीके से चला, मैं पीछे बैठा हूँ, घबरा मत, तेरे को कुछ नहीं होगा, हम्म। चिंता मत कर, तू चला। उसके बाद चलाया, मामा ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद जब मतलब बड़े भैया थे, मतलब पड़ोस के बड़े भैया थे, उन्होंने भी हम्म। बहुत हेल्प किया कि चलाओ, कुछ नहीं होगा, गिरोगे तो देखा जाएगा उसके बाद। हम्म। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं सीखता चला गया। प्लस 10th 11 के बाद किसी का हेल्प नहीं चाहिए होता, मैं खुद निकलता था, घर के सामने में जो ग्राउंड होता था उधर चलाता था। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वाह। आपको गाड़ी चलाते हुए आपका कोई वीडियो है जो हम देख सकते हैं? मैम हाँ, एक वीडियो तो है मैम, इंस्टाग्राम पे आईजीटीवी में एक वीडियो है मैम। ओके। कूल। तो हम लोग जरूर देखेंगे उस वीडियो को वंस ज़रूर मैम, इंटरव्यू खत्म होने के बाद। तो ज़रूर मैम। आप हंसते भी हो कि नहीं? मैं हंसता हूँ ना मैम, क्यों नहीं हंसूंगा। कहाँ स्माइल ही नहीं दे रहे हो आप। इतने इतने सीरियसली आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि मैं आपको डांट नहीं लगा रही हूँ। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार मैम नेपाल और सिक्किम का प्लान मैंने थोड़ा डिफरेंट सोच के रखा है। इस बार सोच रहा हूँ कि इस तरह पे कंप्लीट करूँ, हाँ। तो मतलब नेपाल स्पेंड। और सिक्किम करने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो? मैम अभी तक दिमाग में और कोई दूसरा प्लान डाला ही नहीं, क्योंकि मैम पहले से ये ही नहीं हो रहा है। अगर दूसरा प्लान डालूंगा फिर वो भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे को ऐसा ही लगता है कि जब भी मैं कोई प्लान करता हूँ वो कैंसिल ही हो जाता है। एंड तक आता नहीं है, सब रेडी होता है, प्लान कैंसिल हो जाता है मेरा। ऐसा नहीं होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर आपका जितना भी इच्छा है वो पूरा होगा और आप जरूर राइड करोगे। और त्रिपुरा में आपको क्या लगता है कि अगर कोई आता है, हमने लास्ट वीक अनिजीत शाह से बात किया था, उन्होंने काफी हाँ कुछ बताया। लेकिन हाँ आपके अनिचित भैया। हिसाब से, हाँ, आपके हिसाब से कहाँ पे ज्यादा करके किसी को राइड करते हुए जाना चाहिए त्रिपुरा में? त्रिपुरा में मैम डुम्बुर जाना चाहिए। मतलब डुम्बुर हम्म। का राइड करके भी आपको मज़ा आएगा। मतलब थोड़ा बहुत ऑफ रोड का पैच भी रहेगा, रोड भी ठीक ठाक रहेंगे, थोड़ा बहुत मज़ा हम्म। आएगा, दूर भी है यहाँ से। आप अगर अच्छा। डुम्बुर घूमोगे तो डुम्बुर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उधर एक जगह है नारकेल कुंज करके, मतलब पूरा आपको घाट से बोट में जाना पड़ेगा।
हाँ। जाके आप उधर जाओगे, पूरा ये एक आइलैंड जैसा बना हुआ है, उधर ओके। दुकान सुकान पे, उसके बाद पूरा पानी का पूरा सिनेरियो है। आप उस जगह मैम आके ज़रूर घूमना, अगर आप लोग आओगे तो, मतलब बहुत अच्छा जगह है। वाह। मतलब उसका, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, व्यू ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब जो पानी का जो व्यू रहता है बोट में जाने तक, मतलब वो व्यू, मतलब मैम पूरा अल्टीमेट है वो व्यू। तो ये समुंदर का पानी है कि फिर ये नहीं रिवर मैम, वाटर है? रिवर वाटर है मैम। रिवर वाटर है। वहां पे कौन सा रिवर बहता है? एज इन गोमती। गोमती? हाँ, ओ नाइस। गोम। ग्रेट। और और अगर सर? मैम आप लोग आओगे तो उधर भी जा सकते हो मैम, छबीमुरा। मतलब पहले छबीमुरा वो में क्या? जगह हाँ, पहले वो अमरपुर की साइड में है मैम। ओके। मेरा और मेरा घर से 84 किलोमीटर है। जब पहले वो जगह था, तब वो जगह मतलब गवर्नमेंट ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था उस जगह को लेके, मतलब वो ऐसे ही था कुछ साल। मैम कुछ ही सालों में ये जगह इतना पॉपुलर हो चुका है कि अभी इधर बहुत टूरिस्ट लोग जाते हैं। आप बोटिंग हम्म। में पूरा, मतलब नदी के बीच से जाओगे, बाहर में मैम आपका पूरा वो, हमारे जो राजा थे उन लोगों का जो गॉडनेस था, दुर्गा मूर्ति, वो बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे पहाड़ में, मतलब पूरा उनका पिक्चर्स है। एक गुफा भी है, अगर आपका बोट इधर रुक गया तो आप पत्थर के बीच से जाके गुफा में जा भी सकते हो, देख भी सकते हो। ऑसम। तो पूरा वहां पे पानी के बीच में है, मतलब कोई ऐसा कोई प्लॉट नहीं है जिधर आप मतलब खड़े हो सको, पूरा पानी के बीच में जाओगे, उसके बाद पत्थर से आप जा सकते हो। लवली, बहुत एडवेंचरस लग रहा है वो, आप जैसे सुना रहे हो उस हिसाब हाँ से मैम, काफी बहुत एडवेंचरस एडवेंचरस है लग रहा वो जगह। है। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम त्रिपुरा जब आऊंगी तो आपके साथ ही राइड करके जाऊंगी वहां पे, आप ज़रूर मुझे मैम, लेके जाएंगे। ज़रूर। तो आप अगर मतलब अगर किसी को ऐसा चैलेंजेस आते हैं तो आप उनको लिए क्या बोलना चाहते हो? किसी के लाइफ में अगर ऐसा चैलेंजेस आता है तो मैम, हारना कभी भी नहीं चाहिए। डिफिकल्टीज आते रहेंगी, उनको ओवरकम करना चाहिए। हाँ, आज पहला दिन अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया, किसी का तो ऐसा हादसा ना हो, मैं वही चाहता हूँ। अगर हो भी गया तो डीमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ठीक है, हो गया, दैट्स गुड। बाकी आके इस चीज़ से मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे लिए मायने रखता है। मैं मेरे को किसी करेक्ट। नॉर्मल इंसान से कमज़ोर नहीं समझता। वो जो कर सकता है मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, दिमाग में बस वही चलता रहता है। अगर वो ऑसम। कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। बहुत लोग होते हैं जिनको अगर थोड़ा भी तकलीफ हो जाता है तो वो गिव अप कर देते हैं। उन लोग मतलब गिव अप नहीं लाइफ करना में चाहिए। एकदम से उन लोग डिप्रेस हो जाते हैं। थोड़ा सा भी हार सहन नहीं कर सकते या थोड़ा भी तकलीफ सहन नहीं कर सकते, लेकिन आपने ओवरकम करके बहुत मतलब इतना मोटिवेट किया है। मैं बोलती आप, जैसे मैंने आपका स्टोरी सुना है, अभिषेक ने मुझे बताया कि आप इतने अच्छे से आप राइड वगैरह करते हो, तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा ये चीज। एंड लाइक डिम्पल सिंह बोल रही है कि लाइक रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड शी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर यू। थैंक तो शी सेंड्स हर रेस्पेक्ट टू यू। थैंक यू सो मच। आप अभी आप स्टडीज के बाद फिर क्या करोगे? मैम स्टडीज़ के बाद मम्मी ने बोला कि तू पहले एमएससी कंप्लीट कर ले। पहले बोला था कि तू कॉलेज कंप्लीट कर ले, उसके बाद तेरे को ओके। जिधर मर्जी तू राइट कर सकता है। उसके बाद मम्मी अच्छा। ने बोला कि तू एमएससी कंप्लीट कर ले, उसके बाद जिधर भी तेरे को इच्छा है वो तू राइट कर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तेरे को एमएससी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ओके। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे एमएससी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को ऐसा इंटरेस्टेड था कि वो पहले कॉलेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखेंगे, राइट भी करेंगे, बस लाइफ में कोई और चिंता ही नहीं है, मज़ा ही मज़ा है। लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, एमएससी तेरे को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो तो उस हाँ, तो उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। तो कल ही मम्मी से बात हो रहा था, मैंने बोल रहा था कि ऐसे ऐसे रोडिंग साइकिल से मेरा एक इंटरव्यू का। मम्मी बोला ठीक है, दे दे, लेकिन राइट पे तो नहीं जा रहा है ना अभी। नहीं नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, अभी कैसे राइट पे जाऊंगा। मैंने फिर उसके बाद मैंने को मम्मी ने मतलब मैंने मम्मी को बोला कि देखो मम्मी, एमएससी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं एक साल पूरा राइट करूंगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। कोई नहीं नहीं, उसके बाद डॉक्टरेट भी करना होगा ना मेरे को। नहीं, उसके बाद पूरा राइट, उसके बाद एक साल बैठूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि कोई अगर कोर्स करना होगा तो। वेरी गुड वेरी गुड। तो राइड करते करते आप एक साल पूरा राइड करोगे तो
पूरा इंडिया कवर कर लोगे उसमें? पूरा इंडिया का पता नहीं, लेकिन कुछ जगह के बारे में मैंने सोच रखा है, वो तो जरूर करूंगा मैम। ओके, तो मुंबई जरूर आना हमसे मिलने के लिए। जरूर मैम, मैं इस दिसंबर में मुंबई आ चुका था मैम, आके गया था उधर। अच्छा, हाँ। नेक्स्ट टाइम उधर आओगे तभी जरूर आना। जरूर मैम, जरूर आऊंगा। मुंबई में एक ग्रुप भी है जहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज है, उन लोग हाँ भी वो राइडर्स विनोद, है। और हाँ हाँ, विनोद रावत विनोद जो। रावत। हाँ, उनका पूरा ग्रुप है। तो हाँ अ, उन लोग भी ऐसे ही बहुत इंस्पायर करते हैं हम लोगों को कि वो, दुनिया में चाहे कुछ भी कमी हो खुद पे तो भी गिव अप मत करना, बस आगे बढ़ते हाँ रहो। वही। भैया लोगों ने तो मतलब वो जो लद्दाख में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद तो उन लोगों ने 28 दिन में लद्दाख कंप्लीट किया था। और हाँ, बहुत सारे डोनेशन भी उधर चला था, मैंने देखा था भैया का स्टोरी, विनोद रावत भैया का स्टोरी उधर। रॉयल एनफील्ड कोर्ट से एक पेज था उधर, फीचर किया था, मैंने देखा था। उसके राइट। बाद विनोद भैया से एक दिन फ़ोन पे भी बात हो चुका है मेरा, बहुत दिन पहले अच्छा। बात हो हाँ, चुका है। ग्रेट। वही। आप टैटू बनाते हो कि आपने टैटू हाथ में बनवाया है? मैं टैटू हाथ में बनवाया हुआ है एक इधर थोड़ा है। कैमरा के नजदीक लेके आओ। ओ, दैट्स वेरी क्यूट। थैंक यू मैम। आपकी मम्मी है आपके साथ? नहीं मैम, मम्मी तो नहीं है, अभी मम्मी घर पे नहीं है। अच्छा, घर पे नहीं है। अगर मम्मी होती तो मम्मी से भी बात करते हो। हाँ ज़रूर, एक दिन बात कराऊंगा मम्मी से ज़रूर। मम्मी को पक्का। मतलब आज थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मम्मी थोड़ा बहुत मतलब जाना पड़ा उनको। लेकिन ये काफी खुशी होती है इस देख के कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, और मतलब पापा? बहुत। पापा भी करते हैं, लेकिन पापा इतना नहीं करते। पापा को मतलब पापा को ऐसा है कि हाँ ठीक है, राइट बाइट करो, लेकिन घर के पास ही करो, ज़्यादा दूर अच्छा। मत जाओ। पापा का ऐसा है, लेकिन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पापा मतलब आज तक पापा मम्मी या मामा मौसी किसी ने भी मना नहीं किया कि तू बाइक मत चला, तू वो मत कर, तेरे को जो करना है कर। मतलब कभी भी ग्रेट। तू कमजोर मत सोच खुद को, तेरे को जो मर्जी तू वो कर। लेकिन साथ साथ मतलब एक ही टैगलाइन रहता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, मतलब पढ़ाई हाँ, तेरे को करना ये ही पड़ेगा। जरूरी है। ललित वर्मा पूछ रहे हैं आपका एज कितना है? मेरा अभी 22+ है। अरे वाह, नाइस। अभी तो आपके सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। हाँ वही। आप प्रोफेशनली क्या करना चाहते हो? लाइफ में प्रोफेशनली मैं मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में एक जॉब, मतलब इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में। किसी भी जॉब मेरे को चलेगा, लेकिन वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हो। बैंकिंग बैंकिंग में जो जॉब है, उन चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड नहीं है मेरा। एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। लाइन में कोई भी जॉब मेरे को चलेगा, या फिर ऐसा भी सोचा हुआ हो कि शायद अगर सामने के दिनों में एमएससी के बाद कोई कुछ भी करूँ, पढ़ाई भी कंप्लीट करूँ, तो स्टडी को भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू करना चाहता हूँ आगे। प्लान तो ग्रेट। बहुत तो आप सारे हैं मैम दिमाग में, लेकिन कितना कामयाब हो सकेगा पता नहीं। जरूर कामयाब होगा। आपने फॉरेस्ट्री में अगर एमएससी किया तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहोगे? फॉरेस्ट में अगर किया तो मैम आईएफएस के लिए ज़रूर ट्राई करूंगा, मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ज़रूर ट्राई करूंगा। एक बार ना होने से 2-3 बार तो ज़रूर ट्राई करूंगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। अगर ग्रेट। मेहनत कर पाऊंगा तो मिल जाएगा, नहीं मेहनत कर पाऊंगा तो नहीं मिलेगा चांस। मेहनत तो आप करते ही हो तो फिर डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा मैम, कुछ पढ़ाई ना में कुछ। इतना मेहनत नहीं करता हूँ। आप बाकी सब एमएससी तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली इतना तो थोड़ा मेहनत करके ही पहुंचे हो ना। फिर भी मतलब जितना करना होता है, मम्मी पापा जितना बोलते हैं कि तू ऐसा ऐसा नहीं पढ़ता, तू इतना कम पढ़ता है, कैसे करेगा तू। मतलब मेरे को ऐसा ही होता है, कम करूंगा, हाँ चल जाएगा, देखा जाएगा जो बाद में होगा। नहीं नहीं, अभी अब मेरे जैसे लोग, हमने खाली ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर मुझे नहीं बोलोगे मैम, आगे पढ़ना है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बोला ना, मम्मी ने बोला, हाँ मम्मी को मैं बहुत मानता हूँ कि उनने बोला ठीक है, मम्मी की बात मतलब ज़्यादातर वक्त नहीं टालता। हम्म। कुछ अगर 100 बात बोल दिया मम्मी ने, ठीक है 2-1 बात टाल देता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मतलब मम्मी को मैं बहुत चाहता हूँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वो मैं वेरी गुड। एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितना चाहता हूँ। ऑसम ऑसम, तो मम्मी जो भी बोलेंगी वो आप करोगे? हाँ ज़रूर, क्योंकि पहला जब राइड हुआ था एनईआरएम, मम्मी ने मतलब
एक बार के लिए मम्मी के मुंह से ना नहीं आया, मम्मी ने बोला ठीक है जा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से आ जाना। ये आवाज आपको लव यू बोल रहा है मुझे, ये आपके हाँ दोस्त है? आभास, ये हाँ मेरा दोस्त ही है। अच्छा, आपके बहुत सारे दोस्तों ने ज्वाइन भी किया शायद। हाँ शायद, मैं तो दैट्स गुड। स्टार्ट नहीं कर रहा था, हाँ ज्वाइन किया था। हम्म। तो अभी आपने आपने थंडरबर्ड लिया, थंडरबर्ड लिया राइट? हाँ हाँ। अगला बाइक कौन सा लेना चाहोगे? अभी सोच रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो सोच रहा था कि 390 एडवेंचर या हिमालयन में, मतलब दो दो में से एक बाइक का दिमाग में सोचा हुआ, अभी तक पता नहीं मैं कौन सा लूँगा, लेकिन कुछ दिनों से हिमालयन में भी इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन 390 एडवेंचर मतलब ट्राई, अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, लेकिन जब लॉन्च हुआ था शोरूम में गया था, बैठ के देखा, ठीक ठाक था। एक दोस्त ने खरीदा, उसने हैंडल बार भी चेंज किया, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का एक हैंडल बार था, उसने वो लगाया, तो अभी देखूंगा उसके मतलब बाइक चला के कि वो हैंडल मेरे को जमता है कि नहीं। तो अगर जम गया तो 390 एडवेंचर का एक प्लान है दिमाग में, मैं आगे ये देखता हूँ। वेरी गुड। अभी आपकी पढ़ाई को कितना साल बाकी बचा हुआ है? मैम अभी तो सेकंड सेम कंप्लीट हो चुका है, और अगर अभी जो नया एकेडमिक कैलेंडर निकला है हमारे मतलब हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी से, अगर उस हिसाब से चलेंगे मैम तो शायद हमारा मतलब 2-3 महीना मतलब पीछे जा सकता है कोर्स कंप्लीट होने में। अगर नहीं गया तो मार्च अप्रैल मई जून तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2021 हाँ 2021 में जून में कंप्लीट हो जाएगा मेरा एमएससी। वाह, ऑसम। तो मतलब जून के बाद हम आपको राइड करते हुए देख सकते नहीं, उसके पहले ही अगर दिसंबर में मिल गया तो दिसंबर में ज़रूर निकलूंगा, हैं। कुछ भी हो जाए मैं दिसंबर को निकलूंगा ही। ग्रेट, ग्रेट। दैट इज रियली ऑसम। थैंक यू मैम। और आपके दोस्त लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं? हाँ दोस्त लोग वो बोलते हैं, मतलब दोस्त लोगों का ऐसा कोई नहीं है, मतलब मैं मेरा जितना भी दोस्त है वो लोगों ने भी मेरे को कभी डीमोटिवेट नहीं किया। वो लोग मेरे को लेके प्राउड फील करते हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं सब। वो लोग दूसरे को बताते हैं कि मेरा एक दोस्त ऐसा है, उसने उधर उधर राइड किया, वो बाइक चलाता है, वो करता है, मिलाता है मेरे दोस्त लोग मेरे को, मतलब बहुत, मतलब मेरे को जितना भी दोस्त है लाइफ में भगवान के आशीर्वाद से मिला मेरे को, कभी भी किसी दोस्त ने मेरे को डीमोटिवेट नहीं किया। मतलब वो लोग मेरे बाइक के पीछे जब भी बैठते हैं वो ब्लाइंडली थ्रस्ट करके मेरे को मेरे बाइक के पीछे बैठते हैं। उन लोग को वाह, ऐसा होता है कि ये बंदा नहीं गिराएगा मेरे को बाइक से, कुछ भी हो जाए, मतलब इतना मेरे को, मतलब वो लोग मतलब मानते हैं और विश्वास करते हैं मेरे ऊपर। दैट इज रियली वंडरफुल। मतलब किसी को भी अभी मेरे पीछे किसी को बैठने बिठाने जाऊंगी तो बोले गिरा तो नहीं देगी पहले। लेकिन हाँ मैम मतलब लेकिन आपके पास इतना विश्वास से बैठते हैं, दैट इज सो गुड। हाँ मैम, मेरे दोस्त तो कभी मेरे मतलब मेरे को, मेरा भी एक दोस्त है उसका एक डोमिनर है, तो हाँ, वो हाँ। मतलब मेरे होम टाउन है, उसको अगरतला जाना है, तो मेरे को वो 3 दिन से पूछ रहा था कि कब निकले चल, मेरे को तेरे साथ ही जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाइक नहीं चला, वो बाइक चला सकता है, लेकिन उसको मेरे साथ भी जाना है, मतलब इतना बॉन्डिंग है हम मतलब दोनों का, बाकी दोस्तों के साथ भी है। मतलब वो लोग मेरे को इतना विश्वास करते हैं कि हाँ अगर इसको लेके गया ये मेरा बाइक चलाएगा, ये नहीं गिराएगा, कुछ भी नहीं होगा, भगवान के इतना मानते हैं, मतलब इतना विश्वास भी करते हैं। ये भगवान के आशीर्वाद से मेरे को इतना अच्छा अच्छा दोस्त मिला लाइफ में। दैट इज सो नाइस। दैट इज मतलब इतने अच्छे दोस्त मिलना ही बहुत मुश्किल है लाइफ में। और वही। आपको इतने सपोर्टिव दोस्त और इतने सपोर्टिव फैमिली मिला है। आपके फैमिली में और कौन है, और कोई भाई बहन है आपके? नहीं नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं मम्मी पापा और मेरा नानी है बस, वही। हम लोगों का ओ, जॉइंट फैमिली है, हाँ। मतलब बाबा का जो बड़े भाई है, मेरे मेरे जो अंकल है वो अगरतला में रहते हैं, घर पे भी रहते हैं, लेकिन भैया की मतलब भैया अभी वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ दिन अगरतला में रह लिए, कुछ दिन घर में रह लिए, ऐसा चल रहा है। लेकिन हम लोगों का जॉइंट फैमिली ही है। ओ नाइस। तो पूरा जॉइंट फैमिली में कोई आज तक मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया। वो मेरा जो पापा का जो बड़ा भाई है, वो लोग वो मतलब वो अंकल तो मतलब हर वक्त दोस्त लोगों को बता रहते कि मेरा भांजा वो किया, मेरा भांजा वो किया, वो राइड पे गया, मतलब बहुत बहुत इंस्पायर भी करते हैं। इवन मेरा जो बड़ा भाई है अंकल का बेटा, वो भी मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, मतलब मना नहीं करता कि तू मत जा भाई, ऐसा हो जाएगा, तू जा, लेकिन आराम से जाके आराम से आ जाना। मृण्मय बोल रहा है कि आप कार भी काफी अच्छे चला लेते हो।
हाँ मैम, कार्स भी चलाता हूँ मैं। कौन सा फोर व्हीलर, मतलब फोर व्हीलर में घर कौन सा फोर व्हीलर आप चलाते हो? फोर व्हीलर में अगर घर पे तो एक ऑल्ट्रो है और एक मारुति ओमनी का है, दोनों भी चला सकता हूँ। फोर मतलब किसी भी फोर व्हील में प्रॉब्लम नहीं है, फोर व्हील में पूरा चला सकता हूँ, वाह, कुछ भी और फोर उसको व्हीलर भी हो जाए। मॉडिफाई नहीं किया? नहीं, उसको भी कुछ मॉडिफाइड नहीं किया है, वैसा तो किया शौक के लिए, साइलेंसर को लाउड कर दिया और वो ऐसा लाइट लगा दिया, वो किया, लेकिन अच्छा, चलाने में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। जो गियर जैसे का जैसा है, मतलब बाकी स्टेयरिंग जैसे का जैसा है वो वैसा, कोई दैट इज मॉडिफिकेशन सो नहीं किया। वेरी अमेजिंग। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आपसे मैं बात कर रही हूँ और आप कितना इंस्पायर कर रहे हो यहाँ पे सबको। मतलब थैंक यू। इट रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। थैंक यू। और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, मैं पूछना चाहता था मैम, आपका आपके पास कौन सा बाइक है? मेरे पास है सीबीआर है, एक यूनिकॉर्न है और एक डोमिनार भी है। आप डोमिनार पे राइड करते हो, मैंने देखा था आपके, मतलब उस दिन जब अनिजीत भैया से बात, आप डोमिनार पे राइड कर रहे थे शायद उस दिन। अ, नहीं, जब मैं त्रिपुरा आई थी तब मैं सीबीआर पे आई थी। अच्छा, त्रिपुरा में और आप कब कब आके गए? 2016 में। अच्छा, कहाँ डोमिनार घूमे अभी त्रिपुरा लिया में? मैंने, 2 साल हुआ। त्रिपुरा में कहाँ घूमे? त्रिपुरा में मैं घूमी थी, वो जल महल घूमी थी, हाँ, फिर नीलमहल। हाँ। हाँ, और शक्तिपीठ था वहां पे गई थी। अच्छा, हाँ। और ऊनाकोट गई थी। ऊनुकुटी। हाँ, हाँ, ऊनुकुटी। ऊनाकोटी। और अगरतला में थोड़ा बहुत घूमा था, फ्रेंड्स लोग ने घुमाया था, अनिजीत के साथ ही घूमी थी मैं। अच्छा। और बांग्लादेश का बॉर्डर के अंदर जाके आई। अच्छा, बांग्लादेश, हाँ। हाँ, वो जो नो मैन लैंड रहता है जहाँ पे हाँ, हाँ। फेंसिंग होता है, हाँ, हाँ, वही। वहां पे अंदर जाके आई। सीबीआर में अ, प्रॉब्लम नहीं हुआ मैम ऐसे, मतलब वो तो पूरा स्पोर्ट लुक देता है ना, ऐसे झुक के चलाने में, इतना दूर तक आने में राइड करके? नहीं, सीबीआर में उतना तकलीफ नहीं होता, वो दिखता ऐसे कि झुक के चलाते, लेकिन ज्यादा झुकना नहीं होता। वो एक स्पोर्ट्स टूरर है तो वो हिसाब से अच्छे से चल जाता है। 250 आपके पास सीबीआर? हाँ। मैंने उस दिन चलाया था सीबीआर 250, अच्छा ही लगा चला के, मतलब हाँ, ठीक ठाक है चलाने मैं के लिए। मैं थोड़ी सी होंडा फैन हूँ, मुझे होंडा की अच्छा, गाड़ियां अच्छी लगती है। तो अफ्रीकन टून ले लीजिए। हाँ, जब पैसे आ जाएंगे तब ले लूंगी, अभी कोविड के हिसाब से कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुंबई में मैम आप कहाँ रहते हैं? मुंबई में मैं कांदीवली में रहती हूँ, जो वेस्टर्न सबर्ब्स में आता है। अच्छा, मालूम नहीं इतना। इस बार जब गया आप था मुंबई में वो, कहाँ आए थे? मैम मैं मुंबई में एक्चुअली मेरा जो थंडरबर्ड था ना मैम, हम्म। मैंने उसको मॉडिफिकेशन के लिए मुंबई में दिया था। वहां से मॉडिफिकेशन के लिए मुंबई में दिया था? हाँ, वो आपका उधर ही एक शॉप है मैम, अब्बास बुलेट करके, उसका ओनर का नाम अच्छा। था हबीब है, हबीब शेख है। वो हाँ, हाँ। किसी फॉलो भी करता है आपको शायद इंस्टाग्राम पे, या किसको फॉलो करता है, मैंने उस दिन देखा था। अच्छा। हाँ, तो उसके दिया था, तो मम्मी का उधर एक एलआईसी का कॉन्फ्रेंस था दिसंबर में, हम्म। तो मम्मी के साथ आया था। मैंने पहले बोला था कि मम्मी मैं अकेला जाता हूँ बाइक को देने, मम्मी ने बोला नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ फिर वापस आ जाओगे। तो मम्मी के साथ आया, उधर अरोली में गया, उसके उधर बाइक बाइक देखा, ठीक ठाक था, तो मैंने सोचा था कि 2 दिन, मतलब आने के बाद कुछ महीनों में ही बाइक आ जाएगा, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से अटका हुआ है अभी। तो अच्छा, अभी अभी आ उनसे गया कि बात, नहीं? नहीं मैम, अभी बात हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ, तो ट्रांसपोर्ट बोल रहा है कि गति ट्रांसपोर्ट से बात हुआ था उस दिन, तो ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं कि सर अभी त्रिपुरा का, मतलब इतना नहीं मिल रहा है हमको लगेज, तो कुछ दिनों में अगर मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे, आप उन लोगों को बोलना कि बाइक चलाने के लिए उधर से। अच्छा। तो अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर कुछ दिनों में लगेज फुलफिल हो गया, उन लोगों का त्रिपुरा का बजट मतलब फुलफिल हो गया, तो चला दूंगा बाइक, कुछ दिनों में आ सकता है, बाइक रेडी हो चुका है पूरा पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा निरंजन जी, थैंक यू। एंड आई होप टू सी यू वेर
अगर मैं त्रिपुरा आई तो मैं मिलूंगी आपको वहां पे, या तो आप मुंबई ज़रूर, आओगे तो आप मुझे जरूर ज़रूर, जरूर मिलेंगे। ज़रूर आऊँगा। आप ऑडियंस को कुछ और कहना चाहते हो? ऑडियंस को सिर्फ एक ही बात ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट मत हो। मतलब जो भी प्रॉब्लम आए लाइफ में ओवरकम करके चले जाओ आगे। भगवान ने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर दिया होगा तो उसके पीछे शायद कोई अच्छा रीज़न ही रहेगा, उसके साथ ही शायद गलत हुआ। मैं वही मानता हूँ कि अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, जब हम बहुत प्रॉब्लम में चल रहे होते हैं, उसके पीछे मतलब उसके बिहाइंड पे भगवान का कुछ गुड साइन रहता है। शायद मैं वो मानता हूँ मेरे हिसाब से। तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी लाइफ में, अगर कैच कर सकते हैं तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ऑसम, वेल, वेरी वेल सेड। मतलब कोई भी डिफिकल्टी से शर्माओ मत, उसको फाइट करके आगे हाँ, बढ़ो, एंड आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज और को कभी ना मत बोलना। वही, भगवान किसी को कभी नहीं हराता, मेरा वो मानना है। जितना भी गलत ग्रेट, हो जाए उसके पीछे एक मतलब गुड साइन रहता ही है। आई एग्री। कुछ अगर अपने को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, वो एक्चुअली कुछ और अच्छा लेके आने वाला रहेगा, इसलिए वो वही, चीज थोड़ा सा बुरा होता है। वही। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच निरंजन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपसे माय बात प्लेजर। करके बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रस्ट थैंक मी, यू मैम। आपने बहुत मोटिवेट और इंस्पायर किया है हम सबको यहाँ पे। थैंक कीप यू। अप योर गुड वर्क एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, डॉक्टरेट करो, एंड प्लस नहीं राइडिंग नहीं, भी उतना ही डॉक्टरेट। करो जितना आपका दिल करे। डॉक्टरेट नहीं करूंगा मैम। डॉक्टरेट करूंगा तो मैं पढ़ाई पे फिर वो इतना झुक जाऊंगा, राइडिंग वाइडिंग नहीं होगा। अभी एमएससी के बाद थोड़ा बहुत राइड कर लेता हूं, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे। हाँ, ऐसा थोड़ा करूँ। राइड कर लो, उसके बाद आप पीएचडी कर लो, हाँ फिर वही, आप एक ऐसा सोच। प्रोफेशन भी अच्छे से कर लो। हाँ वही सोचेंगे मैम, अभी एंड उसके बाद। डेफिनेटली हम लोग सब मिलेंगे इसके बाद। ज़रूर मैम, ज़रूर, बहुत जल्द मिलेंगे। Great. God bless you. Take care थैंक यू and मैम। have a lovely Sunday. And thanks to the audience for being with us on this wonderful interview with Nilanjan. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Take care and see you soon. सी यू सून मैम, टेक केयर। Take care. Guys, that was Nilanjan for you. I hope you all enjoyed the interview with him. He is so inspiring and so very motivating. He has never ever given up in spite of having facing so much difficulties right from his childhood. I hope all of us stay so strong always and fight back no matter what difficulties we face in life. So till Wednesday, yes, Wednesday 8 p.m. we will be bringing you another story of another rider. But till then, take care and have a lovely Sunday. And I will see you all soon. Bye bye.